Yeah. Before So the that, I rest. want you to just tell me what exactly we did in last class. Just summarize it. So yes, sir. Yes, sir. I'll just do that, sir. So we basically we did an intro of light and how it can be produced, and we studied about luminous and non-luminous objects and about the dispersion of light, how like different colors have different frequencies and wavelengths. And so then we studied about optical mediums, the three types of optical mediums: opaque, transparent, and translucent, that allow light to pass through them partially or wholly. Opaque does not allow any light to pass through it. And so then we studied about homogeneous and heterogeneous mediums, optical mediums. And so then we covered the sources of light, like the point source of light and the extended source of light. And then so we covered ray of light, beam of light, and also parallel beams, divergent beams, and convergent beams. Sir. Correct. So, what Yes, is the sir. difference between virtual and real image? Sir, a virtual image is basically something that can not be caught on a screen, and it's formed by a plane mirror. And so, like basically, in a virtual image, uh, like the rays which are diverging from a point, so after they reflect or after they refract, they appear to diverge from another point. And so the image which is formed then is called virtual image. And in real image, the rays of light which are diverging from the object, after reflection or refraction, they converge at some other point, and that point is called the real image. What about which can be projected in a screen, which cannot be projected on screen? Sir, a virtual image cannot be caught in a screen, but a real image can be caught in a screen, sir. So the movie theater, the movie is a virtual image or real image? Sir, it's a real image, sir. Fine. So great. Characteristics of image formed by a plane mirror. Yeah. What doubt you had? Just tell me. Sir, like we actually just studied about the images, so sir, that only, sir, like the properties and all. So we'll study that today. Properties of image. Yeah, yeah. We have not gone. We have just Yes, sir. started. We will yet to go to spherical mirror. How to draw a ray diagram and all that. We have not gone yet. We are yet to Yes, go. sir. Don't worry. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So your assignment you can submit to me. You can WhatsApp me in a PDF form. Okay. So Yes, install sir. that Adobe Scan. Scan it continuously, and then make a PDF file and send it to me. Yes, sir. So I'll send it to you after the class. Is No that okay? problem. Later, no problem. Oh, yes, sir. Thank you, sir. So now, so what are the characteristics of image formed by a plane mirror? You have a plane mirror, right? Normal plane mirror, Yes. what you use, you and mom use in your daily life. Yes, sir. So the first is it's a virtual image. Yes or no? Yes, sir. Image is formed behind the mirror. It's formed behind the mirror. So one is the image is formed behind the mirror Yeah. and has the Yeah. same size. Both object and mirror having same size. Yes, sir. Okay. The image is inverted laterally. Image is inverted laterally. What do you mean by that? Yes. So What do you mean by basically, that? your right hand appears to be your left hand, and your left Correct. hand appears to be your right So hand. if you're Yes. standing here like this, and this is your right Yes, hand, sir. is your left hand, and you are seeing yourself, this one, okay, this right hand Yes, will sir. come here, Yes, sir. and this one will come here. Yes, Okay, sir. that's why you will see your right hand will look appear to be left hand, and your left hand appear to be right hand. Yes, sir. But if you are facing other side, that means if you are facing the back side, then your Yes. left hand will be left hand, and right hand will be right hand. Yes. Clear? Lateral inversion. Lateral inversion. Yes. The image is far behind the mirror as the object is in front of it. That means if this is a mirror and you are standing here, the image distance Yes, sir. and the object distance is same. Yeah. That means the image, how far the image from the mirror, similarly the object from the mirror is same. Yes. The distance is same. The image is virtual and the image is called erect. With erect, erect means both image and the object are in the same direction. It is Okay, not sir. like this. It's called inverted. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So some of the problems, formative worksheet. What is the angle of incidence
what is the sum of angle of incidence, angle of reflection, and angle of deviation equal to? What is the sum of incidence, angle of reflection, and angle of deviation equal to? Sir, all three. Yes. Sir, we didn't study about the angle of deviation, so I'm not मैंने sure. पढ़ा था ना, मैंने बताया ये वाला, ये डेविएशन बोलते हैं ना, मैंने बताया था ना कुछ रील्स में. टोटल Ah, कितना है? okay, sir, 180. yes, sir. ऑलवेज. Okay, sir, yes, टोटल sir. ऑलवेज भी 180. Yes, sir. ठीक है, मतलब ये सॉरी ये वाला है, ये वाला ठीक है एक साइड में. Yes. If the angle of deviation after the reflection of right is d, then find the angle of incidence, angle of reflection, and angle of glancing. बताओ. If the angle of deviation after reflection is d, okay, find the Yes. angle of incidence, angle of reflection, and angle of glancing. So, angle of glancing, sir. ग्लांस मतलब मैंने क्या बताया? ग्लांस So, मतलब तुम देखते हो ना. yes, sir. क्या होगा? Sir, it will be 180 minus D. Like, ये तुम्हारा क्या है? एंगल ऑफ ग्लांसिंग यहाँ है ना. ah, yes, sir, yes, ये sir. इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इससे गया Yes, इधर sir. गया, ठीक है ना. एंड Yes, उसके sir. बाद डेविएशन ऐसे गया, ये डेविएट हो गया. Yes, sir. राइट. तो अभी हम बोल रहे हैं कि एंगुलर डेविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद. ओके, ये क्या, ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन. ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये डेविएशन बोलते हैं ना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ, ओके ये डेविएशन है, ये डेविएट किया, कितना डेविएट किया, ये डी है, तो बाकी Yes, कितना होगा? 180 माइनस डी. yes, sir. है ना. Yes, sir. क्लियर. एक मिनट. Yes, sir. Yes, sir. हाँ राकेश. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, ये वाला हम बाद में करते हैं. लेट अस गो टू दिस प्रॉब्लम्स लेटर ऑन. ओके, नाउ वी Yes, विल sir. जंप टू द एक्चुअल सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड displacement of image. What is displacement of image? What do you understand by displacement of image? So, If the object is displaced by a distance x, okay, towards or away from the mirror, the image also suffers the same displacement in opposite position. मतलब ये तुम्हारा एक मिरर है, ठीक है. ये yes, sir. एम 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 डैश जो भी. नाउ अगर मैं ये मिरर को, मेरा जो क्या था, मेरा जो एंगल ऑफ, ये क्या है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट. Yes, अब sir. ये मेरा नॉर्मल था, ये तुम्हारा आई, ये तुम्हारा आर, राइट. अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूँ मिरर को, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसे आएगा? हल्का सा इधर आया तो ये इधर आएगा, है कि नहीं. ये Oh, इधर आया yes. तो ये कैसे आएगा? ऐसे आएगा. ये सुन. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज Yes, कॉल्ड sir. डिस्प्लेसमेंट. Okay. ओके, Sir, what would be the exact definition, sir, for राइट this? डाउन. Yes, sir. If the object is displaced by a distance x, if the object is displaced by a distance x, पहले बार तुम्हारा है क्या, एक बार मेरे को बताना, because I don't know. I'm just seeing a reference book. Do you have this? Yes, sir. One second, sir. हाँ Just एक one बार second. बताना, क्योंकि अगर मैं पढ़ाता हूँ जस्ट चेक, साइड बाय साइड चेक कर लेना एक बार. सर बेसिकली सर एनसीईआरटी में सर पूरा फोकस तो वैसे स्फेरिकल मिरर्स पे ही है. नहीं है ना, बट ये नहीं है ना. सर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है सर. नहीं है तो छोड़ डिस्प्लेसमेंट. दो, लेट नॉट टीच, छोड़ दो. ओके सर. ठीक है. नाउ विल गो टू स्पेरिकल, बिकॉज क्या है, एडवांस चीज़ें के लिए फालतू में हम लोग, बहुत कुछ है. यस सर. व्हाट डू मीन बाय स्पेरिकल मिरर? हमने प्लेन मिरर देखा है ना. यस. अगर एक स्पीयर है, एक स्पीयर का बॉल है, ठीक है, यस सर. ये कांच का बॉल है, मैंने इसको काट दिया. सो इफ यू कट दिस दिस द ऑब्जेक्ट विल बिकम लाइक दिस, हाँ यस सर. है कि नहीं. यस सर. यस. यस यस. या अगर मैं ऐसे काटूं,
मेरा बॉडजेट ऐसे आएगा। अगर मैं ऐसे काटूं, ये सॉरी ये जो पीस था ये ऐसे आएगा एक्चुअली। और एक बार प्रॉपरली करते हैं। ये मेरा एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। Yes, sir. अगर मैं इसको ऐसे काट दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा पीस, राइट। ये एक Yes, sir. इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर मेरे को ऐसे निकलेगा, ये अलग, इसको बोलते कॉन्केव लेंस, डबल कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे भी हो Yes. सकता है, प्लेनो कॉन्केव। एक प्लेन है, ये कॉन्केव है। और एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। जो बल्जिंग साइड उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, अंदर की साइड उसको बोलते हैं कॉन्केव। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव, डबल कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स मीन्स डबल कॉन्वेक्स। क्लियर? Yes, sir. These are Yes, sir. basically the spherical mirrors. Clear? Yes. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव। जो मैंने अलग अलग टाइप का बोला, जो हम जो पढ़ेंगे दो टाइप का पढ़ेंगे। एक है पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉन्केव, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। तो Yes. अगर मैं ये जो पढ़ा है मैंने, ये तुमको लेंस पढ़ाया, अगर मैं ये एक लेंस, ये एक कांच है जो अंदर होलो है, अंदर होलो है। मतलब Yes, आप sir. मान लो एक तुमने बबूला देखा है, जो बबल्स देखे हो, बबल्स। Oh, yes, sir. Yes, sir. बबल्स कैसा रहता है, अंदर कुछ होलो रहता है, राइट। Yes, sir. तो अगर मैं इसको काट दूं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। Yes, sir. मतलब दिस साइड इज कॉल्ड व्हाट, ओपैक या सिल्वर। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, Okay, sir. कॉनकेव मिरर। अगर मैंने इस तरह काट के बाद इसको सिल्वर कर दिया, सिल्वर कर दिया मतलब एक साइड को मैंने ओपैक बना दिया, Yes, sir. इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। मतलब रिफ्लेक्शन जो होगा ये साइड में होगा, बल्जिंग साइड में होगा। यहाँ रिफ्लेक्शन जो होगा वो अंदर की साइड में होगा। क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. दिस अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ ओपैक सरफेस, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये होलो है ना। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. लिखा। Yes, sir. ये diagram and all that सब Yeah, लिख the लिया मैंने. width of the spherical mirror from which the reflection can take place is called aperture. मतलब ये जो पार्ट है जहाँ पर रिफ्लेक्शन लेगा होगा, इसको अपर्चर बोलते हैं। Okay, sir. Can you सिमिलरली repeat इसको भी the अपर्चर बोलेंगे। definition, sir? हाँ, Sir, aperture की sir definition repeat कर दी. the width or the distance of the spherical mirror from which the reflection can take place। ये अब इतना पार्ट में रिफ्लेक्शन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे अपर्चर। ये है क्या, कॉन्केव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा, इतना पार्ट में होगा। ये जो लेंथ है, ठीक है ना, इसको हम लोग Yes, sir. अपर्चर बोलते हैं। विड्थ जो लेंथ जो बोलोगे। क्लियर? Yes, sir. अगर मैं ये पार्ट को, ठीक है, द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल Yes, sir. ये होगा या ये होगा, दोनों का ये सेंटर पार्ट है, पोल। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब देखो, ये जो पार्ट है ये बेसिकली क्या है, एक लेंस का जो बॉल था, सॉरी एक मिरर का बॉल से मैंने काटा गया है कि नहीं। Yes, sir. अगर मैं इसको Yes. पूरा करूं तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। Yes, sir. और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं सेंटर, कोई भी सर्कल का सेंटर, ठीक है ना। तो अगर मैं Yes. इसको हटा दूं तो ये क्या बन जाए, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर।
Okay, sir. सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है, अगर तुम इसको हिंदी में समझोगे, इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, स्पेरिकल मिरर फ्रॉम विच दिस पार्ट इज कट फ्रॉम, उसका सेंटर। मतलब अगर तुम कॉम्पास लोगे और कॉम्पास में इसको मेजर करोगे, ठीक है ना, और यहाँ पर तुम कॉम्पास का रखे, यहाँ पेंसिल करोगे, इफ यू जस्ट Yes. प्लॉट इट यू विल गेट ए सर्कल। तो So, सेंटर ऑफ sir. कर्वेचर वो है, यू कैन राइट द डेफिनेशन, द Yes, sir. ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर, the geometric center of the holosphere, of Yes. which Yes, sir. the spherical mirror is a part is called the center of curvature of the spherical mirror, and it is denoted by a C. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. clear? The length Yes, sir. between the pole and the center of curvature is called radius of curvature. क्यों? सिंपल है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना, ये Yes, sir. रेडियस Yes, है, sir. तुम बना सकते हो। द रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ द मतलब ये लेंथ को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, या यू कैन राइट डाउन अनदर डेफिनेशन, द रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। Yes, sir. दोनों में सेम होगा, ये में भी होगा, ये में भी होगा, एक ही बात है, क्योंकि पार्ट तो एक ही है। क्लियर? Yes, sir. Next is principal axis. What is principal axis? The straight line passing through the center of curvature and the pole is called principal axis. The line passing through the center of curvature and the pole is called principal axis. Yes, sir. इसको px ले सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है? Yes, sir. Next is focus. What is focus? Focus is if a beam of light, मैंने तुमको बताया था लास्ट टाइम कि अगर ये तुम्हारा याद है कॉन्वेक्स लेंस था, हमने बोला सारा बीम जाके क्या होगा, फोकस में मर्ज करेगा। Okay, yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर ये तुम्हारा एक कॉन्केव मिरर है ना, तो ये मेरा क्या है, सिल्वर है, तो अगर सारा बीम पैरेलल जा रहा है तो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये तुम्हारा फोकस रहेगा, सारा बीम इट विल मर्ज इन फोकस। Yes, sir. जो भी लाइट होगा ये फोकस पे आके मर्ज करेगा। राइट डाउन, Yes, sir. if the straight line if a beam of light parallel to the principal axis, if a beam of light parallel to the, ये principal axis है, parallel to the principal axis falls on a concave mirror, Yes, sir. on the concave mirror, all the rays after reflection meet at a point, that point is called focus. Yes, sir. ओके, दोनों के लिए फोकस ऑफ है कॉन्केव मिरर। तो व्हाट अबाउट डाइवर, ये तो मीट किया, व्हाट अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्केव में तो ये होगा, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, देखो ये तुम्हारा क्या है, सॉरी ये तुम्हारा कॉन्केव लेंस है, Okay, yes, sir. ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, राइट? Yes, sir. तो सब क्या हो जाएगा, सारा रे आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, प्रॉपर ड्रॉ करना, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सारा इधर आएगा, इधर आने के बाद क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। क्या Yes, हो sir. जाएगा, डाइवर्ज। कैसे होगा, हाउ इज इट डाइवर्ज, ये चला जाएगा ऐसे, ये चला जाएगा कैसे, ये जो सीधा आया वो सीधा ये ऐसे आया, इधर चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से तुम देखोगे इट विल अपीयर टू मर्ज एट ए पॉइंट, ये पॉइंट फोकस होगा। प्रॉपरली मैंने ड्रॉ नहीं किया, अगर मैं प्रॉपरली ड्रॉ करूँगा प्रॉपरली आएगा।
स्केल से ड्रॉ करना पड़ेगा तभी प्रॉपर होगा. Yes. ठीक है, ये ऐसा गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, ऐसे गया. तो यू हैव टू ड्रॉ द रे. ये ऐसे आ रहा है, ऐसे गया, ये ऐसे गया. अब ये मैं इसको खींच रहा हूँ, ये जो है मैं इसको खींच रहा हूँ. ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए. ठीक है, Yes, sir. ये पॉइंट फोकस है और ये पॉइंट तुम्हारा कर्वेचर है. तो ये पॉइंट रिमेंबर, फोकस और सी, पोल और सी के बीच में सेम है. ये लेंथ और ये लेंथ सेम है. दैट मीन्स ये और ये लेंथ, ये और ये लेंथ Yes, दोनों, sir. ये डबल होगा इससे. हाँ वेद जी. हाँ 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 हाँ. मैं डाल दूंगा, मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं डालता हूँ बाद में. ठीक है, ओके. तो दोनों रिमेंबर, और एक चीज़ है, ये फोकस और सी के बीच में जो लेंथ है, फोकस और पोल के बीच में लेंथ सेम है. दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज डबल दिस डिस्टेंस. ये याद रखो कभी भी. Yes, sir. ओके. एफ ऑन पी, एफ पी इज इक्वल टू एफ सी, और पी सी इज इक्वल टू 2 ऑफ एफ पी. Yes, sir. क्लियर? तो Yes, sir. समझ में आया व्हाट इज फोकस. Yes, sir. Yes, sir. Now, what is focal length? The distance between the focus and the pole is called focal length. Simple. कॉन्केव मिरर के लिए फोकस तुम्हारा नेगेटिव होगा. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस तुम्हारा पॉजिटिव होगा. हम आएंगे क्यों होगा, हम ये पढ़ेंगे बाद में. Yes. So concave के लिए it will be negative. कॉन्केव के लिए नेगेटिव है, कॉन्वेक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि Oh. एक्चुअली देखो, देखो ये तुम्हारा क्या है, ये कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर है, राइट? Yes, sir. ये कॉन्वेक्स मिरर है ना. ये गलत हम देख रहे हैं. या दिस इज नॉट, नो 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 नो, दिस इज नॉट कॉन्वेक्स मिरर, नो. Sir. या दिस इज कॉन्वेक्स, या करेक्ट, सॉरी सॉरी, दिस इज Yes, कॉन्वेक्स sir. मिरर. तो Yes, sir. कॉन्वेक्स मिरर में तुम एक्चुअली ऐसे जा रहे हो. एक्चुअली हमको ऐसा लिखना चाहिए था, मतलब आई शुड हैव ड्रॉन लाइक दिस, लाइक दिस. ठीक है, Yes, sir. ओके. एनीवेज सेम थिंग ओनली. जस्ट नोट इट डाउन कि कॉन्केव मिरर का एफ जो नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव. ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? इट्स अ डायरेक्शन ऑफ लाइट, और कुछ नहीं है. डायरेक्शन ऑफ लाइट. ये क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है. हम इसको लेते हैं, इसको साइन कन्वेंशन हम पढ़ेंगे इसको. क्यों क्यों कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, बाद में. Yes, sir. क्लियर? गुड आउट. Yes, sir. So difference No. between concave mirror, so all the concave mirror is called converging mirror. Concave mirror is called converging mirror. क्यों? Yes. क्योंकि वो converge करता है, right? Yes, sir. मतलब जो भी लाइट है वो होने के बाद कहीं ना कहीं कन्वर्ज करता है. अगर पैरेलल है तो फोकस में आएगा, या कुछ और है वो ये करेगा. तो राइट डाउन some of the conclusion. Any ray of light traveling parallel to the principal axis of a concave mirror, any ray traveling parallel to the principal axis Yes, sir. of a concave mirror after reflection passes through the principal focus of the mirror. मैंने जो बताया था तुमको Okay, sir. कि सारा जो पैरेलल है और जब हिट करके वापस आता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस में जाके, फोकस बोल सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं. Yes, sir. So same thing, no? यस. Okay, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, अगर कोई फोकस में पास करता है
अगर कोई रे फोकस में पास करेगा तो क्या होगा? इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब अगर कोई फोकस में पास करेगा, it will go parallel to the principal axis. A ray of light which first passes through the focus, principal focus, after reflection, okay, will travel parallel to the principal axis of a concave mirror. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Third point. A ray of light which first passes through the center of the curvature of the mirror after reflection will retrace its path. मतलब क्या? तुम अगर बॉल को सीधा फेंकोगे तो इट विल कम बैक इन द सेम, राइट और नॉट? तुम Yes, बॉल को sir. अगर ऐसा फेंकोगे इट विल गो लाइक दिस, इट गो लाइक दिस. दैट मीन्स इफ एनी रे which comes which comes passes Sir. the center of curvature से अगर पास करके जाता है ऐसे, तो इट विल गो एंड इट विल कम बैक सेम पाथ, रिट्रेस इट्स पाथ. Yes, sir. क्योंकि मिरर के बीच में 90 डिग्री में हिट करेगा. ये मिरर है, यहाँ पर जो है वो ऐसा है, ये पार्ट में 90 डिग्री में हिट करेगा. तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, सॉरी 90 हिट करेगा, तो मतलब बेसिकली अगर ये मान लो ये प्लेन मिरर है, अगर ऐसे आता है तो ऐसे जाता है, अगर ऐसे आता है तो ऐसे जाएगा ना वापस. क्यों? Yes, क्योंकि sir. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है कि नहीं? Yes, sir. तो सिमिलरली एनी रे विच passes through the curvature, center of curvature, will retrace back its same path. सेम पाथ में तो वापस जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा. Okay, sir. Yes, sir. ठीक है. गिव मी 5 to 10 minutes, आई विल रिज्यूम. ओके. Yes, sir. I'll just revise them.
से पढ़े लगी कोई तो समझ आई नहीं. Yeah. So any doubt still now? No, sir. No doubt, Okay. sir. So next we'll go to convex mirror and diverging mirror. ठीक है. Yes, sir. तो कैसे होगा, इस पे आप क्या लिखोगे, एनी रे ऑफ लाइट, ठीक है, ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस. उल्टा है. मैं तुमको फिगर दिखाता हूँ, पता चल समझ में आएगा तुमको. Yes, sir. ठीक है. तो ये आया तुम्हारा रे आया, यहाँ रे आया. तो क्या होगा, एक्चुअल रे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा. Sir, डाइवर्ज सर, एक बार सर आप वो स्टेटमेंट रिपीट कर देंगे हाँ. स्टार्टिंग की. यस एनी रे उल्टा होगा, जस्ट फर्स्ट पॉइंट का उल्टा होगा. यस सर. The same end, any ray of light traveling parallel to the principal axis, concave mirror की जगह convex mirror लिखो, यस after सर. reflection appears to diverge from the principal focus. मतलब एक्चुअली रे आके ये चला गया, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये एट appears to डाइवर्ज, यस डाइवर्ज सर. फ्रॉम फोकस से निकला हुआ है, ऐसा लग रहा है. ओके सर. यस सर. ठीक है. यस सर. ठीक है. Similarly, any ray of light which travels along principal axis, principal focus of a convex mirror after यस. reflection, okay, will travel parallel to the principal axis. ओके सर. यस सर. सेकेंड पॉइंट सेम है. थर्ड पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट सेम. एनीथिंग विच ट्रेवल्स along the line of center curvature will यस सर. retrace back in the same path. ओके सर. यस सर. तुम्हारे बुक में ये लिखा है क्या कि ये जो अपना एफ और सी के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इक्वल टू एफ बाई टू, सॉरी सी बाई टू इक्वल टू एफ, ये डेरिवेशन लिखा है क्या, है क्या. सर सर वन सेकेंड. रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका इसका डेरिवेशन है बुक में. यस सर. यस सर. है मेंशन है हाँ सर. तो ठीक है. लिखा. यस सर. नाउ we'll see the difference between concave mirror and convex mirror. ठीक है. फर्स्ट यस सर. पॉइंट, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द कॉन्केव सरफेस. मतलब कहाँ पर, यहाँ पर, सर. ये पार्ट में रिफ्लेक्शन होता है. यस सर. और बेंट सरफेस, here reflection takes place the convex surface or bulging part.
ये Okay, पार्ट sir. में होता है पहला पॉइंट. Yes, sir. Second, a parallel beam of light falling in the mirror, falling on this mirror, converges at a point after reflection. बताया था क्या? जो पैरेलल होता है Yes, सारा sir. क्या जाएगा फोकस में जाके मीट होगा, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हियर क्या होगा? It will Appears to diverge. diverge from a point after reflection. Yes, sir. उल्टा. Concave mirror is a converging mirror, while convex mirror are diverging mirror. Divergent. Yes, sir. इसका रियल फोकस है, इसका क्या? Virtual. क्योंकि Okay, भी sir. फोकस है नहीं, इसका वर्चुअल फोकस है. Yes, sir. ये साइड में तो यहाँ पर वर्चुअल फोकस है. क्लियर? Yes, sir. So now let us do the derivation between relation between focal length f and radius of curvature, that is r. Yes, sir. ठीक है, तो पहले हम ड्रॉ करेंगे दो डायग्राम. ये तुम्हारा हुआ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है? ये साइड तुम्हारा सिल्वर होता है कि नहीं? Yes, sir. और रिफ्लेक्शन जो होगा ये साइड में होगा, बल्जिंग साइड में होगा. Margin. Yes, sir. ये क्या हुआ? इसको क्या बोलते हैं? So the प्रिंसिपल pole. एक्सिस. इसको क्या बोलते हैं? पोल. Yes. Yes, ये sir. तुम्हारा फोकस, ये तुम्हारा Center. सी. ठीक है, Yes, sir. थोड़ा सा इक्वल नहीं हुआ तो इक्वल करना पड़ेगा. ठीक है, Yes, अभी sir. क्या हुआ? पहले मेरा एक रे आया जो ऐसे आया, पैरेलल आया. Yes, sir. तुम करो मेरे साथ. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो क्या होगा? क्या बताया गया है? डाइवर्ज होके चला जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. तो ये आइडियली क्या होना चाहिए? फोकस में आके मीट करेगा, है कि नहीं? Yes, sir. ये सी है, ये पार्ट जो है ये बी है. ठीक है, ये ए पकड़ लो, ये बी पकड़ लो, ये डी पकड़ लो. ठीक है, Yes, sir. अब अगर कोई रे ऐसे सीधा आता है, यहाँ पर सीधा आता है, ठीक है, यहाँ से जाता है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे सीधा कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ. Yes, sir. ठीक है, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एक क्या ट्रायंगल हो जाएगा? ठीक है, एंगल आई. और एक मिनट ये तुम्हारा क्या है? सॉरी, ये ऐसे गया, ये तुम्हारा एंगल ऑफ आई है, ये एंगल आर है. ये ऐसे गया, ये एक नॉर्मल है. ठीक है, ये क्या है? ये नॉर्मल है. Okay, sir. ये तुम्हारा सरफेस है, प्लेन सर, मान लो ये छोटा सा प्लेन सरफेस है. ये Yes, एंगल sir. ऑफ ये इंसिडेंट रे है, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है. तो ये Yes, sir. एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर बराबर. यस और नो? Yes, sir. नाउ जस्ट सी दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. कौन सा? ये रे और ये रे, इन दोनों के बीच में ये और ये क्या तुमको लग रहा है? Sir, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट vertically एंगल. opposite. Yes, sir. तो अगर तुम देखोगे डी एफ एंड सी ओ जो भी, ये दोनों ए है, तो ये एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल. Yes, sir. ये सर नो? Yes, sir. Yes, sir. तो एंगल आई एंगल कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ये सर नो? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, Ah, राइट? yes. Yes, sir. सॉरी, एंगल ऑफ एंगल बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अभी एंगल ऑफ आई, ये जो एंगल है आई, Yes, sir. ठीक है, एंड दिस एंगल कौन सा? ये एंगल वन, ये वन पकड़ लो, ये टू पकड़ लो. Okay, sir. अगर तुम देखोगे ये एक पैरेलल लाइन, क्या हम इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? Yes, sir. तो
तो ये एंगल, अगर मैं एक पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, कि देखो ये बी एफ को ट्रांसवर्सल करो, इमेजिन करो, ठीक है, Yes, sir. ये एंगल, ये वाला ठीक है। सिमिलरली, सॉरी बी एफ नहीं बोल रहा हूँ, ये वाला लाइन कौन सा, सी से ओ, Okay, sir. सी एंड Oh, ये ओ है, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल एक ट्रांसवर्सल, ये जो एंगल है, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल आई है, yes, sir. और ये एंगल वन है। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। Yes, sir. क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। Corresponding. हेलो, हेलो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो Yes, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल वन, वाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखो। corresponding. Yes, sir. अगर जब एंगल आई इक्वल टू एंगल वन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, एंगल आर इक्वल टू एंगल टू, Ah, एंगल आर yes, इक्वल sir. टू एंगल टू, बताया ना, ये जो एंगल आर है, ये Yes, sir. वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये Yes, ये sir. ये और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों ये इक्वल है, तो ये एंगल वन इक्वल टू एंगल टू नहीं होगा। Yes, sir. तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाता है तो ये दो साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। Yes, sir. तो व्हाट टाइप ऑफ एंगल इट विल बी, ट्राइंगल इट बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। Yes, sir. सो सी एफ, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। Ah, yes, sir. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल Good एंड टू facility. एंगल्स आर इक्वल। Yes, sir. ए बी इक्वल टू बी सी, सॉरी ए सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। कैसे प्रूव किया, ये दोनों इक्वल है, एंगल आर इक्वल टू एंगल आई, एंगल आर एंड एंगल टू आर व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। Opposite. Yes, sir. एंगल वन एंड एंगल आई आर corresponding angle, considering AB is parallel to this one, hence this is what, a transversal। तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल टू ए एंगल, तो ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल है, तो ये Yes. आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये साइड इक्वल टू ये साइड, बी एफ इक्वल टू सी एफ। करेक्ट, Yes. Yes, sir. समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. हेंस बी एफ इक्वल टू सी एफ। क्लियर, कोई Yes, डाउट sir. है अभी, अभी तक कोई डाउट है। नहीं sir, नहीं sir. It's नेक्स्ट क्या clear. करेंगे अभी, इफ बी इज वेरी क्लोज टू पी, इफ बी इज वेरी क्लोज टू पी, बी इज वेरी क्लोज टू पी, ठीक है, द लीनियर अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी वेरी स्मॉल। मतलब क्या है, देखो ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक क्या बोल सकते हैं, एक लाइन ले सकते हैं। बेसिकल लाइन नहीं रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, बट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं लीनियर अपर्चर, छोटा सा, राइट। हेंस बी एफ, हेंस बी एफ इक्वल टू पी एफ, ये दोनों सेम होगा। क्यों, ये दोनों बहुत पास में, ये दोनों बहुत पास में, तो ये दोनों एक क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, बी एफ इक्वल टू पी एफ। क्लियर, नंदिनी, हेलो नंदिनी, हेलो,
Sir, can you hear me? या लाइट का प्रॉब्लम है. हाँ हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, तो Sir, वेयर वेयर वी हम लोग यहीं sir, थे you ना. were telling us if B is very close to P, उसके या आगे. तो अगर ये देखो, ये ना ये बहुत पास में है, ये बहुत पास में है, Yes, sir. तो इसको हम लोग एक इक्वल ट्रायंगल ले सकते हैं. तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये Yes, इक्वल sir. हो जाएगा. ठीक है, बी Yes, sir. एफ बी पी बी पी इक्वल टू बी एफ, ये और ये इक्वल हो जाएगा. Yes, sir. बी पी बी एफ इक्वल टू पी एफ, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये और Yes, ये. नाउ इफ यू कंपेयर सी एफ इक्वल टू बी एफ, सी एफ इक्वल टू बी एफ, यहाँ पी एफ इक्वल टू बी एफ. yes, sir. तो तो ये सी एफ इज नॉट, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो सी एफ विल नॉट बी इक्वल टू एफ पी. So, सी एफ इक्वल टू बी एफ, पी yes, एफ sir. इक्वल टू बी एफ, तो पी एफ और सी एफ इक्वल हो जाएगा ना. Yes, sir. तो ये दोनों इक्वल हो गया, है ना. ये Yes, sir. दोनों, ये और ये इक्वल हो गया. तो सी एफ इक्वल टू पी एफ. तो सी पी क्या हो जाएगा, सी पी विल बी सी एफ प्लस पी एफ. Yes, sir. व्हाट इज सी पी, रेडियस ऑफ कर्वेचर. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज एफ पी, फोकस. तो मैं इसको सी एफ प्लस पी एफ को टू पी एफ नहीं लिख सकता हूँ. Yes, sir. तो क्या होगा, टू एफ. तो आर बाई टू इक्वल टू एफ. समझ में आ गया. Yes, sir. क्लियर. Yes, sir. It's clear, sir. ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर का है. अभी हम लोग कॉनकेव मिरर का करेंगे. Yes, sir. ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का कैसे करेंगे, लिख लिया तुमने. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये तुम्हारा ऐसे है. ठीक है, कॉनकेव मिरर का Yes, sir. तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे आके ये तुम्हारा फोकस है, ये तुम्हारा सी है. तो ये आके, राइट और नॉट. Yes, sir. और दूसरा क्या होगा, तो ये तुम्हारा, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको हम लोग, ये तुम्हारा इंसिडेंट एंगल है, ये तुम्हारा नॉर्मल होगा. ये होगा एंगल आई, ये एंगल आर है कि नहीं. Yes, sir. और ये तुम्हारा वन होगा. ठीक है, Yes, sir. और क्या होगा, ये जो लाइन ऐसे क्या, तो भी ये तुम्हारा, ये दिस इज योर ऑब्जेक्ट इमेज, Yes, sir. दिस इज योर फोकस, ये तुम्हारा ये तुम्हारा आर है, ये यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से पी है, एफ है. बस ठीक है. नाउ अगेन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों इक्वल है. Yes, क्यों, sir. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. Laws of reflection. एंगल Yes. आई इक्वल टू एंगल वन, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Yes, sir. ये और ये एंगल इक्वल है, सिमिलरली ये एंगल है. तो एंगल आई इक्वल टू एंगल वन, Yes, sir. एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, है कि नहीं. Yes, sir. नाउ लेट अस कंसीडर, इसको एफ लेते हैं, इसको एफ लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको पी लेते हैं, इसको सी ऑलरेडी है, इसको डी लेते हैं. ठीक है, इसको ए लेते हैं. सो नाउ कंसीडर एंगल सी एफ बी, ट्राइंगल सी एफ बी, सी एफ बी, ये एंगल, ये ट्राइंगल. Yes, sir. ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. Yes, sir. नहीं नहीं, एंगल आई, एंगल वन इक्वल टू एंगल आर, एंगल वन इक्वल टू एंगल आर, ये सुन नो. Yes, sir. Yes, sir.
क्यों? क्योंकि ये एंगल इक्वल है, बट ये एंगल इक्वल है, तो ये दो एंगल इक्वल होगा, Yes, sir. है ना? एंगल वन इक्वल टू एंगल आर। Yes, sir. हैंस अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये क्या ट्रायंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो Also, जाएगा। isosceles, yes, sir. सो सी एफ विल बी इक्वल टू एफ बी। Yes, क्या sir. लिखोगे इधर? इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, Yes, sir. राइट? सिमिलरली ये बी और पी जो पास में है, हम क्या कर सकते हैं? एफ बी इक्वल टू एफ पी। एफ बी Yes, sir. एफ बी इक्वल टू एफ पी। Yes, sir. ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दो इक्वल है, तो सी एफ इक्वल टू एफ पी। देखो एफ बी और बी एफ सेम है ना? Yes, sir. सी एफ इक्वल टू एफ बी एफ इक्वल टू एफ पी, तो ये और ये इक्वल है, तो सी एफ इक्वल टू एफ पी। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो पी सी इक्वल टू व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो Yes, पी sir. सी इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ, दैट इज टू ऑफ पी एफ। तो व्हाट इज Yes, पी sir. एफ? एफ। तो आर इक्वल टू टू एफ, सो आर बाई टू इक्वल टू एफ। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. क्लियर? Yes, लिखा? sir. Yes, yes, sir. कोई डाउट है अभी? सर आप एक बार वो एक्सप्लेन कर दोगे सर, एफ बी इज इक्वल टू एफ पी फिर से? कैसे होगा? यस सर. एफ बी इक्वल एफ, मैं बोला ये जो पार्ट है ना, ये बहुत छोटा है, यस सर. लीनियर अपर्चर है, ठीक है? यस यस. तो ये सारा एक इक्वलेटरल ट्रायंगल है। यस सर. तो ये इक्वल हो गया, ये भी सारा इक्वल है, तो ये इक्वल हो गया, ठीक है? आ ये दोनों इक्वल हो गया, यस सर. तो ये दोनों ये इक्वल हो गया, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। यस सर. ओके सर. आज तक मैं आई एम नॉट टीचिंग एनी मोर, बिकॉज इट बिकम मोर डेरिवेशन। हम लोग कल फिर टुमारो आई विल टेक योर क्लास। कल क्लास है क्या तुम्हारा? सॉरी, स्कूल है क्या? सर